Assalamu alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss chapter number 18 Atomic and Nuclear Physics Review Questions. Question 18.1 है जो what is difference between atomic number and mass number give a symbolic representation of nuclide. Atomic number और mass number के दरमियान differentiate हमने करना है और symbolic representation of nuclide हमने list करना है. एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जबकि मास नंबर जो होता है वो क्या होता है? मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से. Example क्या है? An atom has 6 proton and 7 neutron. Its atomic number will be 6 and mass number is 13. Symbolic representation of nuclide. Nuclide are commonly expressed in the form of X, A, Z. A क्या है? mass number है, mass number को हम ऊपर लिखेंगे और atomic number को हम जो है वो X नीचे लिखेंगे. Now question 18.2 है जो what do you mean by the term radioactivity? Why are some elements radioactive but some are not? Radioactivity क्या होती है वो हमने explain करना. Radioactivity it is the act of emitting radiation spontaneously. जो हमारे पास elements होते हैं जब वो खुद ब खुद radiation को emit करे उस term को हम कहते हैं radioactivity. Radioactivity is such a process in which element with the atomic number greater than 82 keeps on radiating. जिन atomic number का जिन elements का atomic number greater than 82 है वो radioactivity वाले phenomena को exhibit करते हैं और वो radiation को emit करते रहते हैं. Reason for radioactivity: an isotope will be radioactive if its nuclei are unstable. Large atomic nuclei with more than 82 protons and their associated complement of neutron are inherently unstable. ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो अनस्टेबल होते हैं जिसकी वजह से वो रेडिएशन को एमिट करते हैं. यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आर एग्जांपल ऑफ सच एलिमेंट. Small atomic nuclei may also be radioactive if the ratio of neutron to proton exceeds certain limits. जो small atomic nuclei होते हैं वो भी radioactive हो सकते हैं अगर तो जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो exceed कर certain limits से. Tiny hydrogen, the smallest atom, has a radioactive isotope. If the atom is stable, it will not emit radiation. और अगर हमारे पास जो एटम है वो स्टेबल है तो वो emit नहीं करेगा रेडिएशन को और वो रेडियोएक्टिव वाले फिनोमेना को एग्जिबिट नहीं करेगा. Now question 18.3 है जी how can we make radioactive elements artificially? Describe with suitable example. अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और हमने उसको रेडियोएक्टिव बनाना है आर्टिफिशियली तो हम कैसे बना सकते हैं? हमने वो वाला प्रोसीजर लिखना है और उनको डिस्क्राइब करना है विद सुटेबल एग्जांपल. द एलिमेंट्स कैन बी मेड रेडियोएक्टिव artificially by bombarding high energy particles, proton, neutrons और alpha particles on stable element. जब हम किसी स्टेबल एलिमेंट्स के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल जो कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं उनकी बम्बार्डमेंट से हम किसी भी एलिमेंट को रेडियोएक्टिव बना सकते हैं. दिस बम्बार्डमेंट एक्साइट्स द न्यूक्लियाई एंड द न्यूक्लियाई बिकम स्टेबल एंड रेडियोएक्टिव एलिमेंट. इस बम्बार्डमेंट से क्या होगा जो न्यूक्लियाई हमारा एक्साइट्स हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा और रेडियोएक्टिव एलिमेंट बन जाएगा. Through the bombardment of alpha particle against the nuclei of nitrogen atom with mass number 14, Rutherford produced oxygen atom with mass number 16. जब रदरफोर्ड ने बम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल के ऑन द नाइट्रोजन एटम जिसका मास नंबर जो है वो 14 है तो उसने क्या प्रोड्यूस किया? ऑक्सीजन एटम विद मास नंबर 16.
Through this observation, it is concluded that atoms of one specific element can be made into atoms of another element through the process of artificial radioactivity. What are three basic radioactive decay processes and how do they differ from each other? जो थ्री रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेसेस हैं, अल्फा डिके है, बीटा डिके है, गैमा डिके है, उनको हमने एक्सप्लेन करना है और वो कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ है वो भी हमने बताना है. अल्फा डिके क्या होता है? द एटॉमिक नंबर इज reduces by 2, the mass number is reduces by 4, have high power of ionization than beta or gamma decay, have low penetrating ability. इक्वेशन जो होती है अल्फा डिके की वो क्या होती है कि जो हमारे पास एलिमेंट है जब वो अल्फा डिके करेगा तो हमारे पास एक नया एलिमेंट आएगा जिसका जो मास नंबर है वो डिक्रीज होगा बाय 4 और एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा बाय 2 प्लस वो एमिट करेगा अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम 4 और प्लस एनर्जी. अब इसको हम किसी एलिमेंट की मदद से देखते हैं. रेडियम है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर है 226 और मास एटॉमिक नंबर है 88 और मास नंबर है 226. तो जब वो अल्फा डिके करेगा तो हमारे पास आएगा रेडोन जिसका मास नंबर है 222 और एटॉमिक नंबर 86 प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी. Now beta decay, the atomic number is increased by 1, the mass number remains unchanged, have high power of ionization than gamma decay, have high penetrating ability than alpha decay. इक्वेशन क्या होती है वो, अब हमारे पास ये कोई एलिमेंट है, जब वो बीटा डिके करेगा तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज कर जाएगा बाय 1 प्लस बीटा डिके जो है वो इलेक्ट्रॉन से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मास नंबर 0 होता है और एटॉमिक नंबर होता है -1 प्लस एनर्जी. अब कार्बन 14 को जब हमने बीटा डिके करवाना है तो जब वो बीटा डिके करेगा तो हमारे पास आएगा नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होगा 7 और मास नंबर होगा 14 प्लस बीटा एलिमेंट प्लस एनर्जी. नाउ गैमा डिके, the atomic number is remained unchanged, the mass number is remains unchanged. इसके अंदर atomic number भी सेम रहता है और mass number भी सेम रहता है as parent. Have low power of ionization than alpha or beta decay, have high penetrating ability than alpha or beta decay. इक्वेशन क्या है, अब जो एलिमेंट है जब वो गैमा डिके करेगा तो हमारे पास मास नंबर भी सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा प्लस गैमा रेडिएशन इमिट होगी और प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. कोबाल्ट जब गैमा डिके करेगा तो हमारे पास ऑन राइट साइड ऑफ एरो कोबाल्ट ही रहेगा प्लस गैमा रेडिएशन इमिट हो गया और प्लस एनर्जी. Now question 18.5. Write the alpha decay process for Pa234 and 91. Identify the parent and daughter nuclei in this decay. The atomic number is reduces by 2, the mass number is reduces by 4. अब जो इक्वेशन आएगी हमारे पास फॉर Pa23491 फॉर अल्फा डिके वो क्या आएगा, it will get converted into Ac23089 plus helium 42 plus energy. अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारे पास पेरेंट एटम था उसका एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ है बाय 2 और मास नंबर डिक्रीज हुआ है बाय 4. पेरेंट न्यूक्लियाई यहाँ पे क्या है Pa23491 और डॉटर न्यूक्लियाई है Ac230 और 89. Now question 18.6. Explain whether the atomic number can increase during nuclear decay. Support your answer with an example. Yes, atomic number can increase during nuclear decay. In beta decay, the atomic number is increased by 1. The mass number remains unchanged. जब हमारे पास बीटा डिके होता है उसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ जाता है बाय नंबर 1 और मास नंबर जो है वो रिमेन्स अनचेंज. जनरल इक्वेशन क्या है बीटा डिके की, वो है
अगर ये कोई हमारे पास एलिमेंट है जब वो बीटा डिके करेगा तो वहाँ भी क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 प्लस बीटा एलिमेंट प्लस एनर्जी। कार्बन को देख लेते हैं, कार्बन का मास नंबर है 14 और एटॉमिक नंबर है 6। जब ये बीटा डिके करेगा तो हमारे पास आएगा नाइट्रोजन with mass number 14 and atomic number 7 plus beta element plus energy. Now question 18.7 है जी, what do you understand by half life of radioactive element? The half life of a radioactive element is the time needed for half of the material to decay. हाफ लाइफ क्या होता है कि वो टाइम पीरियड जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट को रिक्वायर होता है टू रिमूव हाफ ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट या डिके करता है वो हाफ ऑफ ओरिजिनल एलिमेंट, उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। एग्जांपल क्या जी, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226 इज 1620 years, which means half of radium 226 will disintegrate and convert it to other elements by the end of 1620 years. हाफ लाइफ जो रेडियम 226 है वो कितनी है, 1620 years। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रेडियम 226 है वो हाफ डिके हो जाएगा आफ्टर पासिंग ऑफ 1620 years और वो किसी दूसरे एलिमेंट में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। Question 18.8 Is radioactivity a spontaneous process? Elaborate your answer with simple experiment. Radioactivity a spontaneous process. Radioactivity or radioactive decay is a spontaneous process. It is because the radioactive elements continuously emit radiation from them as a result of reaction taking place within them. जो हमारे पास रेडियोएक्टिविटी है या रेडियोएक्टिव डिके है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये क्यों स्पॉन्टेनियस है? बिकॉज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली रेडिएशन को एमिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जो होते हैं वो अकर होते रहते हैं। Experiment Becquerel in 1986 accidentally discovered that uranium salt crystals emit invisible radiation spontaneously that can darken a photographic plate. Becquerel ने in 1986 डिस्कवर किया कि यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल जो है वो एमिट करते हैं रेडिएशन खुद ब खुद ही, और जो उनके सामने फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी उनको उन्होंने डार्क कर दिया। He also observed that radiation has the ability to ionize the gas. और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेडिएशन एमिट हुई है थ्रू यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल, इनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो गैस को आयनाइज कर सकते हैं। This experiment shows that radioactivity or radioactive decay is a spontaneous process. Now question 18.9 is what is meant by background radiation? Enlist some sources of background radiations. Radiation present in atmosphere due to different radioactive substances are called background radiation. ऐसे रेडिएशन जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, ये क्यों प्रेजेंट है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, और इन रेडिएशन को हम क्या कहते हैं? बैकग्राउंड रेडिएशन। Sources include cosmic radiation which comes from the sun and stars, terrestrial radiation which comes from the earth, internal radiation which exists in all living things, and radioactive material present in atmosphere like uranium, radium, plutonium, etc. Now question 18.10 Write two uses of radioisotopes in medicine, industry or research. In medicine, radioisotope cobalt-60 is used for curing cancerous tumors and cells. जो रेडियोआइसोटोप cobalt-60 है वो कैंसरियस ट्यूमर्स और सेल को क्योर करने के लिए यूज होता है। रेडियोआइसोटोप आयोडीन 131 आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। जो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर गिल्टियां बन जाती हैं उनके डायग्नोसिस के लिए आयोडीन 131 यूज होता है। In industry, radioisotopes are used by manufacturers as a tracer to monitor fluid flow and filtration, detect leak and gas engine wear and corrosion of process equipment. Radioisotopes जो है वो मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं टू मॉनिटर फ्लूइड फ्लो एंड फिल्ट्रेशन। अगर कहीं पे कोई लीकेज है, गैस इंजन वगैरह में कोई खराबी है, क्रोजन अगर हो रही है, उसकी दूरी के लिए जो है रेडियोआइसोटोप यूज किए जाते हैं।
रेडियोआइसोटोप कैन बी यूज्ड टू लोकेट wear and tear of the moving parts of machinery। और जो मशीनरी हमारी मूविंग कर रही होती है उसके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं अगर उनके अंदर कुछ खराबी वराबी आ गई है उसके लिए रेडियोआइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। इन रिसर्च कार्बन 14 इज यूज्ड टू लेबल CO2। कार्बन 14 जो है हम CO2 की प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। Radioisotope allow investigators to increase the sensitivity for analyzing biological samples such as tissue and blood components। इनसे जो है हम टिश्यू या ब्लड कंपोनेंट्स वगैरह की सैम्पलिंग को चेक या एनालाइज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 18.11 है What are two common radiation hazards? Briefly describe the precautions that are taken against them। Radiation burns mainly due to beta and gamma radiation which may cause redness and sores on the skin। रेडिएशन क्या करती है? जलाती है। जो बीटा और गैमा रेडिएशंस होती हैं वो क्या करती हैं? रेडनेस और सोर्स ऑन स्किन प्रोड्यूस करती हैं। स्टेरिलिटी, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। Genetic mutation in both human and plants. Some children are born with serious deformities। Blindness or formation of cataract in the eye। और जिसकी precautions है वो क्या है? The sword should be handled with tongs and forceps। The user should use rubber gloves and hands should be washed carefully after the experiment। All radioactive sources should be stored in thick lead container। Never point radioactive source towards a person। Frequent visit to the radiation sensitive areas should be avoided। Now question 18.12 है जी, complete the nuclear reaction। यूरेनियम 23592 हमें दिया हुआ है और यहाँ पे कोई एलिमेंट X है जिसका मास नंबर है 140 और एटॉमिक नंबर है 54 जो वो 2 न्यूट्रॉन को एमिट कर रहा है। प्लस जहाँ पे जो आएगा सब्सटेंस वो हमने पॉइंट आउट करके रिएक्शन को कंप्लीट करना है। Does this reaction involve fission or fusion? Justify your answer। अब यहाँ पे क्या है? यूरेनियम 235 और 92 हमें दिया हुआ है। राइट हैंड साइड के ऊपर हमें X कोई एलिमेंट दिया हुआ है 140 54 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? स्ट्रोंशियम जिसका मास नंबर है 94 और एटॉमिक नंबर है 38। जब हम इन सब को ऐड करेंगे ऊपर वाले नंबर को 140 प्लस 94 प्लस 2 इंटू 1 तो हमारे पास बन जाएगा 235 और 54 प्लस 38 बन जाएगा 92। तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे सब्सटेंस आना था वो क्या था? स्ट्रोंशियम। It is a fission reaction because the breaking up of nucleus of heavy atoms such as uranium into two nuclei will release of energy। यहाँ पे क्या हुआ? जो यूरेनियम है वो 2 छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन हुआ है जिसकी वजह से ये वाला जो रिएक्शन है वो फिशन रिएक्शन है। The reaction in which heavy atom splits into lighter atom, the process is called nuclear fission। Now question 18.13 Nuclear fusion reaction is more reliable and sustainable source of energy than nuclear fission chain reaction। Justify this statement। Reason why nuclear fusion reaction is more reliable। Nuclear fusion can be more reliable than nuclear fission in energy generation due to the following reason। There are no radioactive waste products obtained as a result of nuclear fusion unlike nuclear fission। जब न्यूक्लियर फ्यूजन वाला रिएक्शन होता है यहाँ पे कोई रेडियोएक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता। This is because the element involved in nuclear fusion are relatively radioactively stable element। इसकी वजह क्या होती है? जो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो रिलेटिवली रेडियोएक्टिवली स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। The risk of nuclear power plant explosion due to out of control chain reaction is reduced in nuclear fusion because the reaction can only occur in perfect condition under high pressure and temperature। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक्सप्लोजन का जो रिस्क होता है ड्यू टू
आउट ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत कम से कम हो जाता है। वजह क्या होती है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो अगर ही तब होंगे जब उनके लिए परफेक्ट कंडीशन अवेलेबल होंगी अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर e.g. the sun. When any of these condition is removed due to a fault, the reaction automatically stops. और जब कोई भी कंडीशन इसमें से रिमूव हो जाएगी, जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही स्टॉप हो जाएगा. More energy is generated during nuclear fusion than in nuclear fission. Now question 18.14 है, a nitrogen nuclide N147 decays to become an oxygen nuclide by emitting an electron. Show this process with an equation. अब जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन बनना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन 14 प्लस हीलियम 4 और हमारे पास प्रोडक्ट साइड के ऊपर आएगा ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 nitrogen, helium, oxygen and hydrogen. Question 18.15 determine which of these radioactive decay process are possible. क्या ये पॉसिबल है रिएक्शन अगर हमारे पास PO2 14 और 84 हो और वो एमिट कर रहा हो अल्फा रेडिएशन और हमारे पास PO2 14 और 8 आ जाए, तो ये यहाँ पे इम्पॉसिबल है क्योंकि जब हमारे पास अल्फा डिके होता है तो मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2. नंबर बी है जी 230 थोरियम 90. अब यहाँ पे क्या बन रहा है, Ra226 और 88 प्लस हीलियम 4. ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, मास नंबर हमारा जो है वो डिक्रीज हो रहा है 4 से और एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है 2 से. फिर है Pa23391 यूरेनियम 23392 प्लस इलेक्ट्रॉन 0-1. ये वाला भी पॉसिबल है क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बीटा डिके होता है तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है बाय नंबर 1. डी में क्या है जी, कार्बन 12 6 नाइट्रोजन 14 7 प्लस 0 और इलेक्ट्रॉन -1. ये वाला भी पॉसिबल है क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कार्बन ने बीटा डिके करना है तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, इंक्रीज कर दिया बाय फैक्टर 1. Process A is not possible. Process B is possible. In beta decay, the atomic number is increased by 1. The mass number remains unchanged. So process C is possible and process D is also possible. Now that's all about review questions of chapter number 8. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploading in future. Inshallah, in our next video we will discuss conceptual questions of physics class 10 Federal Board chapter number 18 atomic and nuclear physics. Till that time, take care. Allah Hafiz.